हेलो एवरीवन। तो काफी लोगों को बैच 3.0 का इंतजार था। तो बैच 3.0 आ गया है। हम 1 नवंबर से हमारी क्लासेस शुरू कर रहे हैं। सो दिस इज फॉर द CUET PG 2025. द स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग फॉर द DU और JNU are welcomed in this course, and this course is presented by myself. This is presented by Amit Mehra, and there is a let's just jump into the next slide. And firstly, you should know about me. Why me? Because we should have a connection. You should know कि I am capable of teaching you. Okay, so myself Amit Mehra, and I brought up in Haryana. I did my 12th from DAV school, and I had a science background. Basically मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एज माय मेन सब्जेक्ट्स थे। मेरा हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं इंटरेस्ट था इन माय 11th एंड 12th, बट राइट आफ्टर द 12th I decided to go for the history honors, and I got admission in a very prestigious college, that is Ramjas College, and it's in North Campus. The one जिसकी faculty it's very famous and very prestigious also. So I did my history honors and I got first division there. So after doing my graduation from Ramjas College, alongside I have completed 1 year certificate course from the St. Stephen's College in the Sanskrit language. Why Sanskrit language? Because it's very engaging when you are studying about the ancient history part. So from that perspective, I have completed the Sanskrit certificate course, and in the Sanskrit certificate course, I have basically studied about the uh, like Abhigyan Shakuntalam, Nal Damayanti, and different kind of stories like Dataka stories. I've read. So these are the translated forms, and that's not so important for you. Okay, then I have completed. Currently, I'm in Department of History, that is in North Campus, and I am a postgraduate student there. It's in University of Delhi, and I have cleared the first cutoff and got admission there. And I have been teaching from past 3 years since my graduation, फर्स्ट ईयर. ओके, तो शुरू से ही मैं पढ़ाता आ रहा हूँ द सेम पैटर्न इन द गूगल मीट, एंड दैट्स माय कॉलेज रामदास कॉलेज. सो दिस अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एंड आई हैव स्पेशलाइजेशन इन हिस्ट्री. ओके, क्योंकि मैंने हिस्ट्री को अपना ग्रेजुएशन में पढ़ा है, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ रहा हूँ साथ में अलोंग साइड. अब नेट की जब मैं प्रिपरेशन करूंगा, देन आई विल ऑल्सो अगेन स्टडी हिस्ट्री. सो आई हैव a very deep interest in history, so you can take assurance ki I will teach you very best out of it. In the next slide, what's the overview of the course? Okay, so this batch 3.0, what does it provide you? So एक overview लेते हैं कि batch 3.0 है क्या. ठीक है, तो आप let's say आप CUT की तैयारी कर रहे हैं. Okay, and I'm not saying it's a very tough exam, it's a चैलेंजिंग एग्जाम, बिकॉज यू हैव टू स्टडी ऑल द हिस्ट्री. आपका आदत नहीं होता ग्रेजुएशन में कि आपने एक MCQ फॉर्मेट में एक तैयारी की हो, क्योंकि जितने भी पेपर होते हैं ग्रेजुएशन में आपके थ्योरी और सब्जेक्टिव टाइप के होते हैं. ठीक है, तो इसमें MCQ पैटर्न आ जाता है, प्लस नेगेटिव मार्किंग होती है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है. तो उसको कवर करने के लिए आई थिंक एक बैच या फिर एक सब्सक्रिप्शन होना आपके लिए थोड़ा सा मायने रखता है. ओके, आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो, नो डाउट, बट अगर आपको पका पकाया कुछ मिल रहा है, देन व्हाई you are going every book to read? You will study Vinder Singh, you will study different mocks. क्योंकि मैंने तो वो कर रखा है, मैं उस प्रोसेस से जा चुका हूँ, मेरे पास उसके नोट्स हैं. आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल द थिंग्स. I will give you that things. I will tell you how to read them, and I will briefly discuss every aspect of this exam. ओके, सो बेसिकली कोर बेनिफिट्स देखते हैं. सबसे पहले एक आप सिलेबस कवरेज हो जाएगा. मेरा टारगेट है कि 3 महीने में आपका एंशियंट मेडिवल मॉडर्न तीनों कंप्लीट हो जाए. कुछ पार्ट में पोस्ट इंडिपेंडेंस का और वर्ल्ड हिस्ट्री का भी कराऊंगा. वो तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कंपेरेटिवली 3-4 क्वेश्चन आते हैं, हम उन्हीं को टारगेट करेंगे. ठीक है, कि वो 4 क्वेश्चन भी हमारे गलत ना हो. then there is a mentorship thing. Okay, different student, there are different students, like एक students को जिसको अभी BC में दिक्कत आ रही है, CEAD समझने में दिक्कत आ रही है, तो उस बच्चे को, और एक जो स्टूडेंट्स है, एक स्टूडेंट है जिसको काफी कॉन्सेप्ट पहले से ही पता है, जिसको कुशांट्स के बारे में पता है, उनकी सारी लीनिएजेस के बारे में पता है, तो उस स्टूडेंट और दूसरे स्टूडेंट में थोड़ा फर्क होगा. बट मेरा क्या रहेगा कि मैं सब बच्चों को एक एक लेवल पर लेके चलूं, ताकि वो एक कंपटीशन में बराबर लेवल पे बैठ सके, उनके बेसिक्स भी क्लियर हो, उनका एडवांस भी क्लियर हो. ठीक है, मतलब दोनों टाइप की जो
जितना भी मतलब हो सकता है पॉसिबल, एक पर्सनलाइज मेंटरशिप के थ्रू एक टेलर्ड गाइडेंस, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। ऑलराइट, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेगुलर एग्जाम अपडेट्स। ओके, तो रेगुलर एग्जाम अपडेट्स से हम क्या समझ रहे हैं कि आपको जैसे जैसे सीयूटी पीजी का एग्जाम होगा, there will be different notification, different guidelines, there may be a paper pattern change and different kind of guidelines that will CUET offer। तो उस सबको मैं अपडेट करता रहूंगा। आई विल प्रोवाइड यू एवरी इंफॉर्मेशन, एवरी वेरी माइन्यूट डिटेल्स, ताकि आपका कोई इस वजह से प्रॉब्लम ना हो कि आपने कुछ इंफॉर्मेशन गलत भर दी। ओके, आपका सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, उसके ऊपर किसके साइन होते हैं, किस अथॉरिटी के साइन होते हैं। लेट्स से तहसीलदार का मिनिमम क्राइटेरिया होता है लाइक डीयू में एडमिशन लेने के लिए। सिमिलरली आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट दैट। ओके, then additional perks like one-to-one interaction. What does one-to-one interaction mean? So one-to-one interaction basically is a simple concept। मेरे पास कोई ऐसे नहीं है कि मैं हजारों बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। देयर विल बी अ स्मॉल स्मॉल बैच। एक बैच में मैक्सिमम 15 स्टूडेंट्स होते हैं। अगर इस बैच में भी अगर 15 स्टूडेंट्स होते हैं तो देयर विल बी अ कनेक्शन। आई कैन सी कि वन पर्सन व्हाट इज ही स्टडिंग, वो किस तरीके से, उसमें इम्प्रूवमेंट क्या आ रहा है, वो कितना पढ़ रहा है, उसको मैं एक तरीके से मैं उससे कांटेक्ट कर सकता हूँ। बट अगर मैं मेरे सारे बैचेस को एक साथ ले आऊं, मेरे एक बैच में 50 बच्चे हो जाए, तो मैं वो एक तरीके से वो कनेक्शन नहीं बना पाऊंगा, ना ही आप मेरे साथ बना पाओगे, क्योंकि मैं आऊंगा, क्लास लूंगा और चला जाऊंगा। तो वो एक कनेक्शन मिसिंग रहेगा उस पार्ट में। तो इसलिए वन टू वन इंटरेक्शन जरूरी है। और आपकी भी डिमांड, आप कुछ पे कर रहे हो, मैं कुछ ले रहा हूँ, तो इट्स माई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड करूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है डिटेल नोट्स। Then what is detailed notes? So there is handwritten notes, there is are standard books, and then there are different kind of short tricks। Okay, तो उन सबको एक हैंड रिटन पीडीएफ में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बिकॉज आई हैव मेड दैट एंड स्पेसिफिकली मेड फॉर दिस एग्जाम। ओके, बिसाइड आपको मैं ये बताऊंगा कि किस बुक में से कौन सा पार्ट बढ़िया है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से क्या समझ आएगा। ओके, देखिए बात ये नहीं है कि मैं आपके आपके आपकी जगह नहीं पढ़ सकता हूँ, बट मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकता हूँ कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज, आपको बढ़िया से बढ़िया नोट्स मिल सकते हैं। आपको 1 घंटे की क्लास मिलेगी जिसके अंदर आप खुद भी नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। देन देर इज अ स्ट्रक्चर लर्निंग, द 1 hour क्लास विद द गाइड एंड नोट टेकिंग। ओके, तो 1 घंटे का हमारा क्लास रहेगा। अब बहुत बच्चों को टाइमिंग का इशू भी रहता है कि सर टाइमिंग क्या होगा, तो टाइमिंग हम अकॉर्डिंगली देख लेंगे। लाइक हम जो पहले वाले बैच में, उनके अलावा जो भी टाइम अवेलेबल होगा दैट विल बी सुटेबल फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, हम वो टाइम अपना ले लेंगे। ठीक है, तो एक ओवरव्यू ये रहेगा कि पूरे कोर्स का हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ पार्ट आते हैं। देर आर मेनी क्वेरीज लाइक सर इसमें एमसीक्यू होंगे, पीवाईक्यू होंगे। सी, जो अभी टाइम रहता है, लाइक जो अर्लियर जो बैच चल रहा है उसमें अभी खत्म होने वाला है सिलेबस, तो दी स्टूडेंट्स आर वे अहेड ऑफ यू। सो उस टाइम से पहले अब उनका एमसीक्यू करा रहा हूँ मैं। कृष्णा रेड्डी बुक है, उसके एमसीक्यूज वो कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अभी एक्स्ट्रा 3 मंथ्स हैं। गेटिंग माई पॉइंट। बट अगर आप अभी भी लगते हो, आपके पास इतना टाइम तो इनफ है कि आप पीवाईक्यूज पे बहुत अच्छी कमांड कर सकते हो, आप मूक्स बहुत ज्यादा लगा सकते हो। सिंस अगर टाइम बचता है तो हम डेफिनेटली वी विल डू एमसीक्यूज। बट फॉर नाउ हम ये मान के चलेंगे कि आपका एक कंप्रीहेंसिव कवरेज होगा सिलेबस का। आपके कुछ एमसीक्यूज भी होंगे जिसके अंदर पीवाईक्यूज इंक्लूडेड होंगे। हम ट्राई करेंगे कि अच्छे से अच्छे आपका सिलेबस कवर हो और आप इस एग्जाम में अराउंड 200 टच कर पाए। ठीक है, अराउंड आउट ऑफ 300, बिकॉज 200 के आसपास ही कट ऑफ रहता है डीयू और जेएनयू दोनों का, एंड डिपेंड ऑन कैटेगरी वाइज। ओके, ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था। अब कुछ डाउट्स आते हैं, सर व्हाट विल बी द फीस। सर हमें फीस का बहुत बता दीजिए, इट्स वेरी कन्वीनियंट अगर आप हमें बता देंगे तो। देखो फीस का क्या रहेगा, आई विल से ऑनेस्टली द फीस विल बी अराउंड 1K per month। Remember this is per month and it's not a big deal। I'm telling you honestly because दिल्ली में मैं भी रहा हूँ। आई नो 1,000 रुपये पर मंथ देना, ऑनेस्टली मेरा मेट्रो का किराया 3,000 रुपये था जस्ट गोइंग टू माई कॉलेज। ओके, तो 1K पर मंथ
that is for your complete course of 1 month, like for एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, तो अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री में अगर आपको बहुत अच्छा समझ आ रहा है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं सेकंड मंथ के लिए, थर्ड मंथ के लिए। ठीक है, आप कंटिन्यू करते रहिए। आपके 3 मंथ में मैं टारगेट करूंगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। सो नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। ठीक है, तो ये 3 महीने ही है। इन 3 महीने से पहले हमारा सीयूटी नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा फरवरी और मार्च बचता है। अगर फरवरी मार्च में सीयूटी होता है तो हम सीधा एमसीक्यूज पर दौड़ेंगे, वरना अपना जो भी आगे का प्रोग्राम होगा मैं आपको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, बट फिर अभी 3 महीने के लिए इसका ये प्लान है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो इस तरीके से ही हमें आगे प्रोसीड करना होगा। सो इट्स अ 1K पर मंथ, इज नॉट अ बिग डील। यू आर स्टडिंग एंड यू आर गेटिंग अ वेरी क्वालिटी कंटेंट। आपको बिल्कुल कैटर्ड नोट्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एग्जाम। ऑल्दो लास्ट टाइम थोड़ा सा चेंज हुआ था पैटर्न, बिकॉज उससे पहले क्या था, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते थे। ठीक है, अराउंड 2023 का पेपर अगर आप देखेंगे, बट 2 to 4 में आपके फैक्चुअल पार्ट ज्यादा आने लग गया। तो हमें दोनों नीड कवर करनी पड़ेंगे, हमें फैक्चुअल पार्ट भी करना पड़ेगा, हमें असर्शन रीजन टाइप भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा अप्रोच रहेगा। उसके बाद कहते हैं सर ये सिलेबस तो हो गया, हमने 3,000 रुपये 3 मंथ के हमारा हो गया, उसके बाद क्या? देखो उसके बाद क्या होता है, आपका एडमिशन का फॉर्म भरना होता है, उसमें प्रेफरेंसेस डालनी होती है, आपको किस कॉलेज में लेना है, क्या लेना है। उसके बाद किस कॉलेज की कट ऑफ आ रही है, ये आ रहा है। अगर आपको ये सब भी, इन सब में भी हेल्प चाहिए, then the comprehensive cost for all these things will be 1K, and it's a very honest price, guys. I'm saying I'm not doing like this कि मैं बहुत ज्यादा ले रहा हूँ। ठीक है, 1K आप कहीं भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके देखना, इट्स अ वेरी, ऑनलाइन में भी अगर आप देखोगे तो आराम से 5-10 हजार सब ले रहे हैं। ठीक है, तो 1K पर मंथ इज नॉट अ बिग डील। सो डिसाइड व्हाट आर यू गेटिंग। ठीक है, आपको इतना सब कुछ मिल रहा है, प्लस यू कैन गेट द वेरी बेस्ट आउट ऑफ इट, एंड इट्स माई बेस्ट विश टू यू कि आपका भी एग्जाम क्लियर हो और आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाएं। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।